Hello and warm welcome to the 4th episode of the Mountain Mindset Show. And आज का episode बहुत interesting होने वाला है because we have the wonderful Himanshu Ranjan with us, who's going to take us through a very interesting journey of the NLP world. How are you, Himanshu? How are you doing? I'm great. Thank you for hosting this show first of all and having amazing guests in this show. Fine, sir. Bye. Okay, hello Sarthak. Okay, so many people have joined in already. Let's get it started. So, Himanshu is joining us from Bangalore, right? Yes. Okay, wonderful. Great. So, Himanshu, मेरा इस शो पे सबसे पहला सवाल सब लोगों से ये होता है कि what you are doing and why you're doing this. So, how did you get into NLP? And for all the engineers in the room, please take us from the Neuro-Linguistic Programming of computers to the NLP life coaching world. Please guide us. NLP है क्या? How did you came into this and what is it all about? Enlighten us. So थोड़ा सा बहुत जो लोग भी इंजीनियर हैं यहाँ पे उनके लिए it will be very interesting because I am also an engineer and from engineering background I completely shifted to this NLP. What happened basically, I was into IT just like every engineer. One fine day, I was in Rishikesh in one of the hostels named as Ghost. And I, at that time, was learning NLP and I was practicing all of these things. So I left my job in Rishikesh in that hostel thinking about, okay, what I'm doing, programming computers. It's better to program humans. So I thought, oh, this is something very nice that I can do. Now, that interest, it got stretched till this point. And now also it is a subject that is a lifetime subject. I don't think it will be something that you only learn for some shorter period of time, but it is a lifetime thing. You will always be a student of NLP. Once you get into it, there is no way out. Okay. So, basically, अगर हम बिल्कुल एक layman के भाषा में जानना चाहें तो what is the NLP? पहले let's break down so that because उस वक्त बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा. Especially आप एक बार पहले इंजीनियर वाला ट्रांजिशन करवा दो कि जो हम अभी दिमाग में NLP लेके चल रहे हैं रोबोट्स वहाँ पे हटके पे हम लाइफ को भी. Right. First of all, for many engineer friends, like NLP, computer science के terms में natural language processing, that is a totally different thing. But जिस NLP की हम लोग बात कर रहे हैं, that is coming from a terms of psychology. Basically, modern applied psychology के terms में आ रहा है. NLP को हम लोग Neuro-Linguistic Programming कहते हैं. काफ़ी अच्छा नाम दिया गया है. इनके फाउंडर्स ने इनको बहुत ही सोच समझ के नाम दिया है ताकि क्लिक कर जाए लोगों को बहुत जल्दी. एंड होता क्या है कि NLP Neuro-Linguistic Programming इट सिंपली डील्स विथ, अगर मैं बहुत आसान शब्दों में बोलूँगा अगर, तो जैसे मैं ये फ़ोन भी अगर यूज़ कर रहा हूँ हम लोग लाइव शो के लिए, या मैं ईयरफोन्स लगाए हूँ, आप भी ईयरफोन्स लगाए हो, तो जब भी हम ये चीज़ परचेज करते हैं हमेशा आपने देखा होगा कि यूज़र मैनुअल मिलती है ना उसके साथ, राइट? जैसे सदगुरु नहीं बोलते हैं लाइक यू गेट अ यूज़र मैनुअल फॉर एवरीथिंग बट नॉट योर ओन बॉडी. सो वो अपना इंजीनियरिंग प्रोग्राम पिच कर देते हैं वहीं पे. तो वैसे NLP जो है इसको दूसरा भी एक टर्म दिया गया है AKA यूजर मैनुअल फॉर ब्रेन और माइंड. तो बहुत आसान शब्दों में क्योंकि अगर डीप में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बट एक आसान भाषा में समझने के लिए इट इज अ यूजर मैनुअल फॉर योर ओन एंड यू शुड ऑलवेज हैव दिस यूजर मैनुअल रिगार्डलेस आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में हो, या आप किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में हो. इट ऑलवेज Okay, wonderful. So, जहाँ तक what I know is I think NLP was founded around in 1970s in West California, right? Correct. Okay. अब मेरे एक एंगल मेरा हमेशा कोई भी न्यू साइकोलॉजी टेक्निक सीखते हुए ये होता है कि was it actually founded in the West या it has some origins in our Indian culture? So, if you could throw some light on that. जब फाउंडेड की बात करते हैं तो वहाँ पे NLP बेसिकली क्या किया, उन्होंने कुछ लोगों को स्टडी किया. जब इसको पढ़ रहे थे रिचर्ड बैंडलर एंड आपके दूसरे पर्सन जो थे जॉन ग्राइंडर, राइट? तो जब
ये दोनों स्टडी कर रहे थे, बेसिकली दे वर स्टडीइंग व्हाट इज ऑलरेडी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ थेरेपी। तो उन्होंने 3 लोगों को मेनली स्टडी किया, वर्जीनिया सेटायर, फ्रिट्ज पर्ल्स और एक और बंदा था, फैमिली थेरेपिस्ट था वो, हिज नेम वाज मिल्टन एच एरिक्सन। यस, तो इन तीनों को स्टडी किया उन्होंने। उनका मेन पर्पस ये था कि कैसे लैंग्वेज और कम्युनिकेशन हम चेंजेस ला सकते हैं अपने बिहेवियर में, या पर्सनल चेंजेस ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोचिंग एंड थेरेपी। तो इसको बहुत सारी आगे चल के बहुत सारी फील्ड्स में भी यूटिलाइज किया। बट जब हम बात करते हैं फाउंडेड की, तो मैं कभी ऐसा नहीं कहता हूँ कि हाँ उन्होंने इन्वेंट की कोई चीज़, क्योंकि दिस इज अ साइंस विच ऑलरेडी इज प्रेजेंट। अब चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूरोप में हो, हर जगह इस टाइप का साइंस people have already discovered this thing. I will say that we have discovered this thing. Okay. So, Indian culture में इसके रूट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? इंडियन अगर कल्चर में देखेंगे तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं तो, क्योंकि श्री कृष्णा उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। कैसे उन्होंने इन एंटायर भगवद गीता यू विल फाइंड हाउ श्री कृष्णा यूजेस NLP फॉर कम्युनिकेशन with Arjun. Okay. How he commands each and everything, the way of his questioning, how he questions Arjun and leads him forward for that leadership role. How we inspire the leader in Arjun. The time when Arjuna was at his, lowest level in terms of action. In terms of action. Not in capability, but in terms of action. How he raised his level simply by communicating with him. Absolutely. That is the use of language in neuro-linguistic programming. So, जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो जो आपके co-founder हैं NLP के, जॉन ग्राइंडर, he was a linguist. He was an American linguist. So he used to study कि कैसे ग्रामर का यूज़ करके, प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करके, प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स का यूज़ करके आप उनको ऐसा स्ट्रक्चर दें ताकि वो चेंज। इसीलिए किसी भी लीडर को हम जब देखते हैं, या किसी भी वर्टिकल पोजीशन के जो भी CEOs या कोई भी हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं, दे नो हाउ टू यूज द वर्ड्स प्रॉपर्ली एंड दे यूज इट वेरी the words we use, how we use them, वो tone क्या है, they could just make or break any deal you're going to, चाहे वो प्रॉपर सिंग्स डील, बिजनेस डील हो या कोई नॉर्मल हाउस होल्ड कॉन्वर्सेशन हो, हर जगह पे सब। सो इट इज इंटरेस्टिंग टू सी, मतलब NLP जो है हर वॉक ऑफ लाइफ में काम आ सकती है, राइट? यस। So if you could just give one example, like for example, let's take the person scene. Okay, आप suppose घर में कुछ conversation कर रहे हो, so how can one use an NLP technique into bad effect, which is give us how we want to learn? So बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम घर के कम्युनिकेशन में बात करते हैं तो many of us do not know how to communicate well. Right. We know how to communicate, but we do not know how to communicate well. अब जब communicate well हम शब्द यूज करते हैं तो there are a very specific choice of words. हम कभी भी जब घर में बात करते हैं या आम तौर पे जब हम फ्रेंड्स से बात करते हैं तो हम बहुत बकते जाते हैं, like unlimited, infinite zone में चले जाते हैं, because that level of friendliness कम। बट होता क्या है कि इन एवरी कन्वर्सेशन आप देखेंगे कि अगर मम्मी भी बात कर रही हैं बेटे से तो शी कम्स विद सम इंटेंशन। हर कन्वर्सेशन के पीछे एक हिडन इंटेंशन होता है, चाहे हम बोल लें कि हाँ हम किसी भी इंटेंशन के साथ नहीं आए, बट सबकॉन्शियस लेवल पे हमेशा होता है। हाउ टू अचीव दिस थिंग्स, मदर्स आर वेरी बेटर इन दिस थिंग, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल, NLP में मेटा मॉडल है। NLP का सबसे जो मेजर कम्युनिकेशन मॉडल है और जो सबसे पहले फाउंड हुआ वो है मेटा मॉडल। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि वो वेक लैंग्वेज का यूज़ करना। जैसे हम कुछ मम्मी से पूछे कि हाँ आपने मेरा कोट देखा है क्या, कहाँ रखा है, वही रखा, उसके बदल में वही रखा होगा। तो दैट वेक लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। अब हम कभी भी कुछ भी ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे हम काफ़ी सारे जनरलाइजेशन में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि होता क्या है NLP में बहुत ये थोड़ा सा अभी डीप में जाएगा, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में है NLP,
कि जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, तो हम हमेशा रियलिटी को डिलीट करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं और जनरलाइज करके अपने अंदर हम उस चीज का एक नया रियलिटी बना लेते हैं, जिसे हम क्योंकि वी आर परसीविंग थ्रू ऑल ऑफ आवर सेंसेस एंड दैट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन। अब वहां से जाके कहीं पे कलेक्ट होके पूरा एक एनालाइज नहीं होता है, प्रोसेस होता है डेटा, एंड देन उसको हम परसीव करते हैं, उसी को परसेप्शन कहते हैं। जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसे रिसेप्शन कहते हैं, एंड देन इसके हिसाब से हम अपना बिहेवियर तय करते हैं। तो कभी भी हम फैमिली इन्वायरमेंट में होते हैं, एक बहुत ही सिंपल चीज़ बताऊंगा, एनएलपी कैसे आप यूज़ करते होगे फैमिली में। आपने कभी भी देखा होगा, आप फैमिली के साथ होगे, उनका जैसा बॉडी लैंग्वेज होगा ना, आप ऑटोमेटिकली उस बॉडी लैंग्वेज में आ जाओ। सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ मंकी फैमिली, वी कैन से, so we use this। अब होता है कि एनएलपी में इसी चीज को मिररिंग बोला गया है। Okay. जो लोग सब कॉन्शियसली कर रहे हैं, नाउ यू कैन यूज इट कॉन्शियसली। हाउ? इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन यूज इट फॉर बिल्डिंग रैपोर। Like आपका जो इंटेंट है, that you can use for your communication. राइट। जैसे मैं देखूंगा कि कोई भी अगर एक बहुत ही अल्फा पोजीशन में या एक लीडरशिप पोजीशन में, मैं उस कम्युनिकेशन में थोड़ी देर शुरुआत में उस कम्युनिकेशन के उसकी की बॉडी लैंग्वेज को मैच करने की कोशिश करूंगा। Okay. Not in a way that it looks cheap, but it looks very subtle. Okay. Right. तो जब हम वो करते हैं तो एक इंस्टेंट रैपोर्ट जनरेट होता है। सामने वाले को बहुत कंफर्टेबल फील होता है कि यार ये अपनी जैसा बंदा है। एंड जब वो करते हैं, नाउ हियर कम्स द सेकेंड थिंग, जिसको आप गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एनएलपी में एक बहुत बड़ा सेगमेंट ये भी है, लोगों को लगता है कि एनएलपी इज यूज्ड फॉर ऑल द डार्क थिंग्स, डार्क पर्सुएशन आल्सो। डेटिंग इंडस्ट्री में, पिकअप इंडस्ट्री में, सेल्स में, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। आपकी इंटेंशन मैटर करती है एनएलपी को सीखने की और उसको यूज करने की। तो कैसे आप यूज कर सकते हैं? नाउ हियर कम्स, जब आपने मिरर किया उसके बाद यू कैन, व्हेन यू गेट इनटू दैट रैपोर्ट जोन, तब आप उस कम्युनिकेशन को लीड भी कर सकते हो। यू कैन गो विद डिफरेंट बॉडी पोजीशन। नाउ जब आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए, एक सबकॉन्शियस ट्रस्ट बिल्ड हो गया आपका, नाउ सेकंड पर्सन विल बी मिररिंग यू। Okay. दैट इज एट अ वेरी सबकॉन्शियस लेवल, क्योंकि आपने वो कनेक्ट कर लिया। अब जो भी आप करोगे तो आप लीड कर सकते हो वहां से कम्युनिकेशन को। आई थिंक अगर हम वापस जाए एक सेकंड के लिए अपने वन एग्जांपल पे, तो शायद श्री कृष्ण भी वहाँ पर कुछ ना कुछ यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में अर्जुन की माइंडसेट बहुत लो है, एनर्जी लेवल बहुत लो है, कृष्ण का बहुत हाई है, तो वो स्लोली उसको अपने जोन में लेकर आ रहे हैं कि यू हैव टू गेट आउट, यू हैव टू फाइट। आई थिंक इज दिस गेटिंग इनटू प्ले देयर? एम आई गोइंग टाइट विद दिस? एनएलपी में एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है जो कि डेटिंग इंडस्ट्री में भी यूज होती है, जो कि सेल्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यूज होती है। उसे कहते हैं पेसिंग एंड लीडिंग। पेसिंग का मतलब है यू आर बिल्डिंग एन इंस्टेंट रैपोर्ट बाय कमिंग इनटू द जोन ऑफ द पर्सन whom you are communicating। लीडिंग का मतलब है एक बार आपने रैपोर्ट जनरेट कर लिया, एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ वो रैपोर्ट जनरेट कर लिया ना, कि अर्जुन वाज एट हिज लोएस्ट लेवल, क्या करना है, क्यों करना है, मैं क्यों मारूं अपने ही लोग हैं सब, राइट। एक बार उन्होंने वो कनेक्शन बिल्ड किया क्वेश्चनिंग के थ्रू, हाँ अर्जुन तुम सही हो। अब वहां से उन्होंने लीड करना शुरू किया। एंड स्टार्टिंग, very starting, he was not into that position. He did not go into an advice mode. He got into the questioning mode. Like, क्यों questioning? Because questioning always builds rapport. It always builds authority. It gives you control. Second thing is, आप questioning के through lead करते हो conversation. आप जब statements बोलते हो तो आप lead नहीं कर रहे होते हो, आप follow करते हो conversation. Wonderful. Okay, so जो ये एनएलपी की टेक्निक है, इसको हमने देख लिया पर्सनल लाइफ में कैसे यूज करना है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हैव गिवन एग्जांपल्स, बट इज इट समथिंग कि सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत सारे लोग एनएलपी यूज कर रहे हैं, या फिर देयर समवन इज
therefore they are not aware of it, right? Of course. So how can we come out of this situation and just start leading that conversation? तो ऐसी क्या एक हम छोटी सी टिप इस कॉन्वर्सेशन पे ले सकते हैं कि people at least just start noticing NLP patterns in their life, or they start noticing कि यहाँ पर हमें NLP की जरूरत है नहीं. What is that? तो इसमें क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इट स्टार्ट्स विथ सम फंडामेंटल्स. व्हाट फंडामेंटल्स? NLP का सिंपल फंडामेंटल मैं 1 मिनट में ही बता देता हूँ कि whatever information you are getting, either you are watching this live also or you are having your phone, everything comes through your 5 senses. But काफ़ी टाइम पे हमने कोई भी एक गेट नहीं लगा रखा होता है. एक सबकॉन्शियस लेवल पे हमारे मेंटल फिल्टर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं. वी आर बॉर्न विद देम थ्रू इवोल्यूशन, वो डेवलप हुए हैं. बट नाउ अगर आपको पता हो कि मेरे ये मेंटल फिल्टर हैं कि मैं अक्सर चीज़ें जनरलाइज करता हूँ कि यार सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, सारे कुत्ते ना ऐसे डेंजरस होते हैं, राइट? तो ये तो वहाँ पे आप अगर अपने बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन कर सकते हो. तो माय थिंग इज कि आप, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दैट हाउ यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लिटिल वॉइस. जैसे ब्लेयर सिंगर ही टॉक्स अबाउट कि हाँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो लिटिल वॉइस है, वो आपको क्या कह रहा है. लाइक इफ यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट, दैट इज नॉट कंट्रोलिंग यू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको कंट्रोल कर रहा होता है एंड यू आर नॉट अवेयर. एक बार आप अवेयर हो गए, हाउ टू टेक कंट्रोल? वेरी सिंपल टिप, जस्ट क्वेश्चन इट. And do not just start questioning it immediately. Say, thank you for sharing this information with me. Now question it how it is true. वो belief system आप break भी कर सकते हो, बहुत instant हो जाता है. Wonderful. And I think ये again it's linking back to the example that we shared. और ये बहुत बार स्पिरिचुअल सीकर्स में बहुत बार ये एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये जो महाभारत की स्टोरी है, ये किसी और की एक्सटर्नल स्टोरी नहीं है. यू कैन जस्ट अप्लाई टू योर ओन लाइफ. क्योंकि हम हमेशा अपने मन से लड़ते रहते हैं. जैसे अर्जुन अपने मन से लड़ रहा था, हम यहाँ पे लड़ रहे हैं. तो हमको वो कृष्ण का रोल अपने लिए अप्लाई करना है बाय लर्निंग NLP, स्टार्टिंग विद क्वेश्चनिंग. पहले उसको समझना है और वहीं से कोई सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी स्टार्ट हो सकती है. राइट? तो मैं एक चीज मैं बहुत छोटी सी ऐड करूँगा. जब NLP में एक मॉडल होता है, द वाइज माइंड मॉडल. होता क्या है? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊँ. काफी लोग, हम लोग क्योंकि बॉलीवुड बहुत ज्यादा देखते हैं, राइट? तो हम लोग की प्रोग्रामिंग मोस्टली एक इमोशनल माइंड से हम लोग ज्यादा सोचते हैं. एंड इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हाँ, फेमिनिन मैस्कुलिन नेचर भी होता है. कोई अगर मैस्कुलिन ज्यादा है तो वो रैशनली ज्यादा सोचता है, कोई अगर फेमिनिन ज्यादा है तो वो इमोशनली ज्यादा सोचता है. बट व्हाट इज द वाइज थिंग टू डू इज टू कंबाइन बोथ द थिंग. हाउ डू यू कंबाइन? क्योंकि काफी लोग जब कंबाइन करते हैं तो मैस अप कर देते हैं. इट इज वेरी सिंपल कि आप हार्ट के थ्रू इंटेंशन जानो चीजों की, बिकॉज हार्ट विल टेल यू द इंटेंशन, बट माइंड it will give you the logic and proper way how to go through that intention. So that is the work of wise mind कि हाँ, आपको आप intention, क्योंकि for everything that you are doing or everything that a person is doing, NLP में एक बहुत बड़ा presupposition है, every action has a positive intention. फिर चाहे वो चोर चोरी भी कर रहा हो, उसके लिए कुछ ना कुछ positive intention होता है, right? So what is the wise thing? To know the intention behind every action. That is the simple. Okay, wonderful. That sounds interesting. I think बहुत सारी techniques और बहुत सारे models हैं NLP के that we could continue this conversation with. But as in running out of time, I would definitely love to have you back on the show. And I she could to listen more from you, learn more about NLP. And if anyone wants to start an NLP journey, then please go ahead and check out Himanshu's Instagram handle. We'll be really happy to help you guys. So just one last bit, Himanshu. You're an NLP master coach, right? So what is that? If you could just let us know. इसको इस तरीके से देख लेते हैं. आप एक प्रैक्टिशनर कब होते हो किसी भी चीज में? जब आप वो चीजें प्रैक्टिस करने लगते हो अपनी लाइफ में. जब आप वो प्रैक्टिस करके आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो, यू कैन शेयर दैट
thing with another person also. Okay. Master का simple मतलब यही होता है कि he is a master. He can share these things at good level because you have practiced that much in your life. अगर मैं कहूँगा कि तो I have started my NLP journey from 2020. Okay. And from that moment, it is not simple thing कि वो सिर्फ coaching segment में use हो रहा है या किसी video sharing में use हो रहा है. It is a life changing process. कैसे आप life के हर segment में आप NLP देख रहे होते हो. जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हो कि हाँ यहाँ पे जैसे हम conversation कर रहे हैं वहाँ पे NLP कैसे use हो रहा है. If I am in an event, वहाँ पे NLP कैसे यूज हो रहा है. इफ आई एम ऑन सेल्स कॉल, वहाँ पे NLP कैसे यूज हो रहा है. इफ आई एम डूइंग कन्वर्सेशन विद माय पेरेंट्स और समवन, वहाँ पे NLP कैसे यूज हो रहा है. तो दैट जब आप उस लेवल पे होते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको सर्टिफिकेशन या उसकी जरूरत होती है. यू ऑलरेडी बिकम अ मास्टर है दैट मोमेंट. ये वन great. But I think जितना ज़्यादा I am getting to know NLP, I feel it is like a must have for everyone, and especially for people who are just like it's a must have. Else, you know, My intention is very simple. Like every person at least should know the fundamentals of NLP. Very simple Mind of intention. Right, because and it's like it's that manual for mind. But if we don't have any manual for our mind, we don't have any manual for our life, and then NLP is a technique that helps us get that. You know, आज के दिन में इतने सारे Right. wonderful. इतनी सारी ऐप हैं तो यार एक यूजर मैनुअल होना चाहिए ना माइंड के लिए. Absolutely. And mind is the only thing जिसके साथ हम पूरे दिन रहते हैं, जिससे कंट्रोल होकर हम अपनी पूरी लाइफ करते हैं. What is another conversation? वो अलग conversation. Right. Okay, that's great. And with that, we come to the end of this show. I hope you had a great time. I hope our audience also loved it. Thank you a lot for coming. And we would love to have you back again in the show. And as I always say, till the next time, keep learning, keep growing. Namaste, everyone. Bye. And keep moving forward, everyone.